Om Sri Chinmaya Sadgurave. So, one who is constantly and entirely engaged in the pursuit of earning, procuring, and hoarding material wealth cannot and will not have either the time or the occasion or the required inner, you know, subtlety of heart and head to inquire into the possibilities of a hereafter. So long as the mind and the intellect are lying uh, drowned in vulgar values of life based upon the thoughtless conclusions and instinctive identification of oneself with one's own body and so on, one shall not come to feel easily any thirst to know or to entertain any urge to go beyond the shackles of mortal limitations. To such men, pure materialists, the life in this plane of consciousness, generally noted for its tears and sweat, passing smiles and gasping laughters, is all that life is. To them, the ideals of a higher and diviner life do not even suggest as possibilities. Even if they are told of the existence of a higher, you know, realizable life of greater perfections, they will have neither the intellectual capacity to grasp such a philosophical idea nor the material accommodation to feel the divinity. To such childish prattlers, the materialists, this short and uncertain span of existence is all that is, a life that came from nowhere, that exhausts itself into a zero, that during its existence lives on without any reference to the past or any ambition for the future. To such men, life is a humdrum scheme of madness, inexplicable and mysterious, logical but meaningless, confusing and confounding, and certainly such men cannot and will not be fit once for philosophical contemplation or for the pursuit of strict and conscious life of self control or for the voluntary insistence of a constant self discipline. So, what was the mantra? I hope you can remember. It is Prathamadhyay, Vidya Balli, mantra number
6. न संपराय प्रतिभाति बालम प्रमाद्यंतम वित्त मोहेन मूढ़म अयम लोक नास्ति पर इति मानि पुनः पुनर्वसम आपद्यते. So this was the mantra, and it was its explanation. So we were discussing about Uttarayan and Dakshinayan. We were talking about the Uttarayana, those who go to the path of Uttarayan, or those who want to go to the path of Uttarayan. Tatra prayata gachanti brahma brahma vido janaha. उस पथ में जिन लोग जाते हैं उन लोग ब्रह्मज्ञ होकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं. यहाँ पर पृथ्वी में आना जाना विषय थोड़ा सहज कर दिया. भगवत गीता में एक जगह पर है, आ ब्रह्म भुवनाल्लोकाः पुनरावर्ती नोर्जुन. इन भगवत गीता 8th chapter 16th श्लोक. आ ब्रह्म भुवनाल्लोकाः पुनरावर्ती नोर्जुन. हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक सारे लोक से फिर से वापस आना पड़ता है. ब्रह्मलोक प्राप्त होता है लेकिन फिर से वापस आते हैं. लेकिन इसमें थोड़ा सा लगता है कि विरोध है, क्योंकि हम लोग जो जानते हैं कि ब्रह्मलोक से कोई वापस नहीं आता. बाकी जितना लोक है, 13 लोक, हमारे चतुर्दश भुवन, 13 लोक से वापस आना ही पड़ता है. और मैंने पूछा ना, जे आपको मैंने बोला, जो जो लोग उत्तरायण में शरीर छोड़ते हैं और जो लोग उत्तरायण में शरीर छोड़ना चाहते हैं, आपको लगेगा अरे ऐसे कोई व्यक्ति नहीं रहेगा जो उत्तरायण में शरीर छोड़ना नहीं चाहते. ऐसे गलतफहमी में मत पड़िए. Everyone, not amongst us, in this whole world, when they came to know that there is a rebirth, they are waiting for that. So many people have so many vasanas, that I will be a bird, a tree. In 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 Bengali, there is one song कि যদি আকাশ হতে আমি বলাকার মতো পাখা মেলতাম. Have you heard ever?
if I become the, if you are like the sky, if you were the sky, I used to become a bird and I used to fly over there. যদি আকাশ হতে তুমি বলাকার মতো পাখা মেল. So those are the thinking process. Not everyone wants to be liberated, मुक्त. बहुत लोग स्वर्ग चाहते हैं, बहुत लोग वापस आना चाहते हैं, बहुत लोग रिवेंज लेना चाहते हैं. कितना वाइफ है पूछो जो अगले जन्म में उसी व्यक्ति का हस्बैंड बनना चाहता है, हमारे क्लास में नहीं. बिलीव मी, अरे भाई मैं इतने काउंसिल करता हूं, मैं पूछता हूं लोगों से, तो बातों बातों में बोल देता है कि स्वामी जी अगले जन्म में ना आई विल बी द हस्बैंड ऑफ दिस पर्सन. Out of love, out of compassion, out of jealousy, out of revenge. क्या है I don't know, but it is there. But those who really want that mukti, brahmalok, और ऐसे भी है कि जो लोग चरम पवित्र जीवन जापन करते हैं और थोड़ा वेदांत भी जानते हैं, उन लोग ब्रह्मलोक में डायरेक्ट पहुंचते हैं. और ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी स्वयं अद्वैत वेदांत पढ़ा के उनको मुक्त करते हैं. सच में कितना दिन टाइम लगता है उसके बारे में छांदोग्य उपनिषद में है. छांदोग्य उपनिषद में है कि शायद 105 साल और समथिंग लाइक दैट, 105 years ब्रह्मा जी पढ़ाते हैं एंड उसके बाद मुक्त हो जाते हैं. शायद मेरा representation is something like that you are smiling at, but Upanishad is telling, Veda, Shruti Mata. So ब्रह्म, लेकिन इधर भगवान बोल रहे हैं आ ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तिनो. तो आपको लगेगा मैं क्यों रेफरेंस दिया, क्योंकि उपनिषद में है जो लोग ब्रह्म लोग जाते हैं उन लोग वापस नहीं आते. और भगवान श्री कृष्ण ऐसे बोल रहे हैं. सो उत्तरायण की पथ में जो लोग जाते हैं उनके अंदर दो प्रधान विभाग वर्णन करा किया हुआ है. जो लोग बहुत पुण्य कमाया, बहुत, जो लोग साधु सेवा किया, साधु को वेजिटेबल चॉप खिलाया, घुगनी खिलाया, ये सब किया एकादशी के दिन, एकदम कोई चावल नहीं, दाल नहीं, गम नहीं, कुछ नहीं, सब ऐसे करके. तो भगवान बोला ये पुण्य रखो, ये पुण्य रखो, ये पुण्य रखो. इन लोग बहुत पुण्य अर्जन किया है. इधर उस पुण्यवान को ब्रह्मविद बोल रहा है और इन लोग ब्रह्मलोक में जाकर मुक्ति लाभ करते. इस ब्रह्मलोक में ही दो प्रकार की साधक की गति हो रहा है और उन सब लोग ज्ञान प्रधान है. लेकिन एक
क्लस्टर ऑफ पीपल आर देयर जिनको वापस आना पड़ता है, दूसरे को नहीं। तो जिनको वापस आना पड़ता है उनको लक्ष्य करके ही, उद्देश्य उद्देश्य करके ही गीता में बताया हुआ है कि ब्रह्म लोक तक सब पुनरावर्ती वापस आते हैं। कोई कोई व्याख्यान करते हैं कि ब्रह्मलोक पर्यंत, इसका मतलब है ब्रह्मलोक के ठीक नीचे तक। लेकिन गीता की भाषा से ऐसे ही लगता है कि ब्रह्मलोक तक इनका अंतर्भुक्ति है। जिन लोग क्रम मुक्ति के पथ में ब्रह्मलोक में जाते हैं, उन लोगों की ज्ञान की जो सामान्य प्रतिबंधक रहते हैं, वो पूरा की पूरा कट जाता है और ब्रह्म ज्ञान लाभ करते हैं और मुक्त हो जाते हैं। ब्रह्मलोक को कोई कोई आचार्य हिरण्यगर्भ लोक भी बताए हैं। अगर उन आचार्य की व्याख्यान में यही हिरण्यगर्भ लोक है, तो हिरण्यगर्भ के साथ युक्त हो जाते हैं। हिरण्यगर्भ मीन्स, हिरण्यगर्भ मीन्स टोटल माइंड, टोटल एवरीथिंग, like total intellect. You just consider Google. आप जो भी ऐसे ऐसे करेंगे तुरंत मिल जाएगा। एकादशी फूड इन कोलकाता, सारे गलत इंफॉर्मेशन। तो इतना हो गया। अभी हिरण्यगर्भ के साथ उन लोग युक्त हो जाते हैं, और जिनकी थोड़ा थोड़ा अंकट वंकट रहते हैं ना, सब कुछ जाकर उन लोग मुक्त हो जाते हैं। तो दो पथ है, एक है कर्म की या अज्ञान की, जिनके फलस्वरूप लोग चंद्रलोक में जाते हैं। और दूसरा है उपासना, या तो कर्म के साथ उपासना, जिनको विद्या की पद भी बोल रहा है, और जिनकी रिजल्ट से ब्रह्मलोक तक जा सकते हैं। ये ब्रह्मलोक जाने वाले का भी दो श्रेणी है, जिनका क्रम मुक्ति हो रहा है, और क्रम मुक्ति होते होते उनको और वापस नहीं आना पड़ेगा। जो 10th पास किया, 12th पास किया, उसके बाद ग्रेजुएशन किया, उनके बाद मास्टर्स किया, उनके बाद पीएचडी किया, उन्होंने तो, उनका तो क्रम मुक्ति से बोलते हैं। लेकिन कोई कोई है, वो क्या किया है पता नहीं। कभी बोल रहा है कि मैं एलएलबी किया है, कभी बोल रहा है कुछ किया है, कभी बोल रहा है पीएचडी किया है। तो उसके ऊपर कोई केस कर देता है तो उसको पीएचडी नेक्स्ट ईयर चला जाता है। पे अटेंशन। जिनको क्रम मुक्ति हुआ है उनसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन जो ऐसे अपने पद की पावर में, पोस्ट की पावर में आलतू फालतू बोल देते कि आई एम ऑल्सो पीएचडी, आई एम ए लॉयर, आई एम एन इंजीनियर, आई एम डॉक्टर, पता पता नहीं। लेकिन जो भी उसका
छीन सकता है, जो ऐसे आसानी से कुछ किसी को मिल जाते हैं। ठीक है। तो एक क्रम मुक्ति है, जो लोग कभी वापस नहीं आते, लेकिन कोई कोई है जो वापस आते हैं। ये दोनों छोड़कर क्या तृतीय पद कुछ है? शास्त्र बोल रहा है। जिन लोग शास्त्र के अनुसार नहीं चलते, जिन लोग सिर्फ अपने स्वभाव की द्वारा चालित होकर चलते, जो हर चीज में मनमानी करते हैं, धर्म में, पूजा की जीवन में, अपनी उपासना की जीवन में, कि स्वामी जी मुझे लगता है, मैं, आप क्या करते, सुबह उठते ही मैं ऐसे करके ऐसे 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 करता हूं। हमारे पास 1,000 ऐसे छोटा छोटा थाली है। क्यों? क्योंकि हमारे पूजा घर में 1,000 भगवान है। सबको मैं एक एक करके नोकुल दाना देता हूं। और उसमें बहुत टाइम चला जाता है, स्वामी जी क्लास कैसे करूं? क्यों, क्या हुआ? चंदन घिसना पड़ता है, लाल चंदन और सफेद चंदन। और जो चावल देता हूं ना, वो थोड़ा सा भी टूटा नहीं रहेगा। किसने बोला तुमको ये सब करने के लिए? ना स्वामी, आई एम वेरी परफेक्शनिस्ट। एंड दे नेवर लिसन टू एनीथिंग एल्स। उनके मन में जो आता है वही करते। और इसे बोलते हैं इंस्टिंक्चुअल लाइफ। इवन इन द स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ऑल्सो, दे आर इंस्टिंक्चुअल, इंस्टिंक्टिव। उन लोग अपने कर्म के अनुसार प्रेरित होकर फिर से जन्म लेते हैं, फिर से सुख दुख भोग करते हैं। उन लोगों की भोग देह में शुभ अशुभ सृष्टि होता है। इन लोगों को उपलक्ष्य करके ही उपनिषद में बोल रहा है, सस्यम इव मर्त्य पच्यते, सस्यम इव अजायते पुनः। इसी उपनिषद में है। हाँ, भूल नहीं जाने का। ये कठोपनिषद की मंत्र, और हम लोग पढ़ चुके हैं प्रथम अध्याय, प्रथम वल्ली और 6 नंबर मंत्र, जहां पर नचिकेता बोल रहे हैं, कस्मै माम दास्यसीति मृत्युवेत्वा ददामिति। उसके बाद आया ना, किम सिद यमस्य कर्तव्यम यन्मयाद्य करिष्यति। उसके बाद पिताजी के पास गया और पिताजी को बोला, अरे आप क्यों आपके वादा नहीं रख रहे हैं? सस्यमिव मर्त्य पश्यति स्वस्वमिव अजायते पुनः। उसका पहला लाइन क्या था? बहुनामेमि प्रथमः, बहुनामेमि मध्यमः, किम, क्या है, क्या है? बीजामा क्या बोल रहे हैं, बोलो। किंग सिद्धमस्य कर्तव्यम यन्मयार्थ परीक्षति। ओके। एंड इस मंत्र का क्या है? हम्म। इस मंत्र का क्या है? व्हाट अबाउट दिस मंत्र? प्रथमो बहुनामेवि मध्यम किंग सिद्धमस्य कर्तव्यम यन्मयार्थ परीक्षति। अनुपक्ष यथा पूर्वे प्रतिपक्ष तथा परे। यस। दशमेव अनुपस्य मृत्यु। यथा पूर्वे प्रतिपस्य तथा परे, सस्यम इव मर्त्यः पच्यते, सस्यम इव अजायते पुनः। दैट्स द थिंग। हम लोग पहले भी देखा है, बाद में भी देखूंगा कि ऐसे ऐसे होता है। सस्य का जन्म होता है, सस्य मर जाता है, सस्य को फिर से बोने से और फिर से उगता है। क्लियर? सस्य के जैसे जन्म भी लेता है, मर भी जाते हैं। यही है तृतीय पद। और इस पद की पथिक को उद्देश्य करके यमराज जी बोल रहे हैं, पुनः पुनः वसमापद्ये, वसमाप वसमापद्यते में, इस मंत्र में।
बार बार मेरा अधीनता स्वीकार करके इन लोग जन्म भी ग्रहण करते हैं, मृत्यु भी ग्रहण करते हैं। ये जो चक्र है ये निरविच्छिन्न है, ये कट नहीं रहा है। और जितना दिन ये चलेगा उतना दिन पूर्व संचित शुभ अशुभ कर्म, अन्य प्रकार की जन्म, ये सब उत्पन्न होगा। प्रबल पाप के लिए बहुत कष्ट होगा। थोड़ा सा पुण्य है, थोड़ा शुद्ध जीवन मिलेगा। बहुत पुण्य कमाया है, बहुत शुद्ध, थोड़ा आमिर घर में जन्म लेगा, जहां पर रोटी कपड़ा मकान की चिंता नहीं है। लेकिन उस जन्म में फिर से कोई नया कर्म चालू कर दिया, नया कर्म फल संचय हो गया। शुभ कर्म संचय होने से जीव का उन्नति का पथ होता है। जिन लोग शास्त्रीय कोई पथ को अवलंबन नहीं करते, इन लोग ये तृतीय रास्ता की, तीसरा रास्ता की यात्री होता है। वो कर्म का भी पथ नहीं, ज्ञान का भी पथ नहीं। आप सोचिए, हम लोग जिस पथ को अपनाते हैं, ना तो वो कर्म मार्ग की पथ कि वेद में इस जगह पर ये कर्म के बारे में है, मैं ये फॉलो करता हूं, और ना तो ज्ञान की पथ। मैक्सिमम पीपल, इसीलिए शास्त्र बोल रहा है ये जो चक्र है, दिस इज कॉल्ड विशियस सर्कल। लेकिन इनके हाथ से बचने का उपाय है। लेकिन फिर भी लोग इसे अवलंबन क्यों नहीं करते? इसका एक ही उपाय है। शास्त्र सुनने का वासना नहीं होता। स्वामी जी, मैं क्या करूं? जितना भी बोलो, शास्त्र चल रहा है इस घर में। देखिए, इन माई ईच एंड एवरी क्लास आई ट्राई टू टेक समवन एल्स इन माई क्लास। ज्यादातर स्टाफ लोगों को ही लेता, इन भगवत गीता, इन रामचरितमानस, in even now also. Not only they assist me by giving the book, I don't know they know or not, because many a days happen nobody is there. I alone take the class. The only vasana is at least little bit shastra they will listen. चाहे बंगाली में हो, चाहे हिंदी में हो, चाहे अंग्रेजी हिंदी मिक्स्ड में हो, उनके कान में थोड़ा सा ये पवित्र शब्द जाए, ये वासना है। किताब तो सेकेंडरी मैटर, बहुत दिन चलता है, जो कब कोई नहीं है मेरे साथ। सो इन दिस वे, इफ पीपल just come into that, get introduced with the shastra, उनके दिल में इच्छा पैदा होगा। और नहीं तो इसका भी पवित्र पुण्य के में बहुत कुछ हो सकता है। जीवन में जो नहीं होने का था वो हो जाता है। शास्त्र का ऐसे महात्मा है। लेकिन ऐसे ऐसे बहुत लोग हैं, चल रहा है, माँ को लेकर आया या नानी को लेकर आया, मोबाइल देख रहा है क्योंकि नानी क्लास में आया है, मैं नहीं आया। शायद यू आर एक्सपीरियंस्ड इन दैट। ये आत्मज्ञान के द्वारा ही सिर्फ ये जन्म मृत्यु की जो परंपरा चल रहा है, इससे निष्कृति पाना संभव है।
लेकिन आत्मज्ञान सेल्फ नॉलेज की बात सुनने की समय ही नहीं है लोगों के पास। इच्छा नहीं है, समय नहीं है। और अगर सुन भी लिया, उनको समझने का जो धारणा शक्ति है वो भी नहीं है। इसीलिए उपनिषद बोल रहा है, श्रवणायपि बहुभीर्यो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः आश्चर्यवक्ता कुशलस्य लब्धाः आश्चर्यज्ञाता कुशलानुशिष्टः। Mantra number 7. This is one of the beautiful mantra in Kathopanishad. I told you the, the the substratum of Bhagavad Gita. भगवत गीता किससे बना हुआ है? भगवत गीता बना हुआ है कठोपनिषद 70%, 20% ईशावास्य उपनिषद. So Kathopanishad is the base of Bhagavad Gita. And in Bhagavad Gita, have you heard this mantra? ढूंढो. आश्चर्य वक्ता आप नहीं सुना? यस. श्रवणायापि बहुभीर्यो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः आश्चर्यवक्ता कुशलोऽस्य लब्धाः आश्चर्यज्ञाता कुशलानुशिष्टः. यह जो आत्मा बहुभी बहुत लोगों के पास श्रवणाय अपि सिर्फ श्रवण के लिए भी न लभ्य सुलभ नहीं है. यम. यम मतलब यमराज नहीं. इधर यम देखिए, इसलिए आचार्य की जरूरत है, क्योंकि आपको लगेगा यम मतलब यमराज. इधर यम मतलब जिनके बारे में यह शब्द. ओके. तो यम जिनके बारे में शृण्वंत अपि श्रवण करने के बाद भी बहवः बहुत लोग न विद्युः आत्मा के बारे में जान नहीं पाते. अस्य यही मतलब वही आत्मा, आत्मा की वक्ता जो बोलते हैं आचार्य, आश्चर्य बहुत दुर्लभ है. अच्छा, सिर्फ आप लोगों के बारे में ही बोल रहा है यार. हम लोग 7:30 से कंप्यूटर मोबाइल खोल के बैठे रहते हैं और 10 मिनट अपेक्षा करते हैं. आप अपेक्षा करते हैं कब ये आएगा वो आएगा. हमारे बारे में कुछ नहीं बताया. बताया भाई. अस्य लब्धा कुशलः. जो लोग ये सब सुन रहे हैं, आत्म तत्व की बोधा, जिनका अति सूक्ष्म बुद्धि है, हाउ देयर कुशलानुशिष्ट, दे मस्ट हैव वेरी सटल इंटेलेक्ट, सूक्ष्म बुद्धि. उनके आचार्य के द्वारा उपदिष्ट हुआ है. उपदेश पाकर जो व्यक्ति ज्ञाता हुआ, आत्म तत्व के बारे में जान लिया है,
वो व्यक्ति भी आश्चर्य है, अति दुर्लभ, अति विरल है। We will discuss more on it tomorrow. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।